Assalamu alaikum. Today we have 11th lecture for Business Finance MGT 232. We were studying about stock valuation, and it was a new chapter for us after bond valuation. Now we talked about long-term securities. Within long-term securities we talk about debt financing and equity financing. In debt financing we have bond valuation. In equity financing we have stock or share valuation. Let's look at a brief overview of the last lecture. In the last lecture we completed our chapter of bond valuation, where we studied what is yield to maturity. That is, if you have to earn a return on bonds, on investment in the bonds, and if you keep those bonds till maturity, what will be the return, or what will be the percentage rate or the rate of return? That percentage return or the rate of return is in the form of yield. And whenever we talk about investment in the bonds, that's bond yield. And if we keep the bonds till maturity and we are finding out the percentage rate or the rate of return on that investment, it would be yield to maturity. When we talk about yield to call, it is something that, or it is some return that is earned on the bonds if they are held till call. So bonds have the option of being called. If the bonds are callable, that means company has a provision to call the bonds. Company decided to issue the bonds till 20 years, maturity date is 20 years, and company decided to have those bonds returned or called after 10 years. So the maturity date is 20 and the bonds are callable after 10 years. Exactly after 10 years you will be finding the value or the yield or the return. For example, if you have the bonds 20-year maturity, 10 years callable, you will be finding out the return YTC. That means you are getting the you are finding out the return on the investment if it is held till call, or if the bonds are held till call. आप call जितनी time period में call होगा, उस time period में देखते हैं कि कितना return आएगा आपकी investment के ऊपर. और अगर till maturity रखे तो that is YTM. So this is how YTC and YTM is. Then we found out how semi-annual compounding for YTM and YTC is done. And it's similar thing. We have to make change in few things only. The first one is your first thing is your INT, interest payment, RD, that, or YTM or YTC, and your number of years. Then we found out the current yield. If we talk about the current yield, it is just recent or the current return on the rate of return. That percentage return जो आपको फौरन एक सेकंड में आपको पता चलता है कि कितना return आ जाए. But it's an approximate value. It does not provide the complete information of the expected return, but it do provide you information about the expected, what is approximate expected return it could have on the investment of the bonds. Then we talk about different steps for finding out yield to maturity and yield to call. The steps include, we had 6 steps. Step 1 was finding out interest payment. Then we had step 2, that was about the formula. Now in case of YTM, it would be VB is equals to INT into 1 minus 1 plus YTM whole power minus n whole over YTM plus maturity value into 1 plus YTM whole power minus n. एक चीज याद रखें कि जब भी हम n की बात करते हैं तो यहाँ पे n number of years till maturity होगा. Then we have in case of YTC. In case of YTC we have yield to call. The formula is VB is equals to INT into 1 minus 1 plus YTC power minus n whole over YTC plus call price into 1 plus YTC power minus n. This is the formula for finding out YTC. In this case as well, you have to consider that the number of years are number of years till called, till the bonds are called. तो हम वो number of years consider करते हैं. और in case of maturity, till maturity use करते हैं. ये दो difference है. Maturity value की जगह आपकी call price use होती है. Then we in the third step we found out the interpolation. The formula for interpolation is INT plus maturity value minus VB whole over n whole over 0.4 into maturity value plus
plus 0.6 into VB. Now in case of YTC, this is the shortcut formula interpolation for YTM. But when we use YTC, तो ये maturity value आपकी change हो जाती है आपकी call price के साथ, और N is number of years to maturity for YTM and number of years to call for YTC. For detail, please refer to my last lecture. Fourth step is hit and trial method. Fifth is your the last fifth step, which is most probably the last one, where we find out finding YTM or YTC, that is the value is the exact amount जो आपकी आती है. जब हम interpolation करते हैं तो हमारे पास approximate value आती है. That approximate value is being used for the next time. That is, we use that value to hit and trial method, and then we find the YTM or YTC exactly the exact amount, the exact answer. Sixth, the step 6 is to recheck. Whatever answer we have, we will recheck it by using the formula we defined in step number 2. So this is how it is being defined, that what are the different steps for finding out YTM or YTC, and it is the yield on your bonds. Let's start our new chapter, that is stock valuation. That is our today's chapter. Now let's look at our another chapter, that is stock valuation, and we are starting a new chapter of the long-term securities. Well, before going into detail, one thing is very important that I have told you before starting the bond valuation chapter, that we have two different ways of financing. Now, finance may we have investing, we have financing. In case of financing, we have two options. We have debt financing and we have equity financing. In debt financing, we have loan, we have bonds. We have studied all the details of the bonds. And in case of equity, we have stocks or shares. Stocks और shares जो भी आप उसको कहें. Stocks और shares की value होती है कि आप किस तरीके से stock valuation करते हैं. अगर आपने equity financing करनी है तो आप stocks issue करते हैं. आपकी corporation जो है वो stocks या new shares issue करती है. So we are now completed this. We have completed this bond valuation, and now we are going to complete this stock or share valuation. Now let's look at a few of the differences between bonds and stocks, because we have been talking about it as long-term securities. So within financing, we have short-term securities, we have short-term financing, we have long-term financing. Within long-term financing, we have debt financing and equity financing. So when let's look at this long-term financing instruments, bonds and stocks. Now let's look at the points of difference. The first point of difference is your voice in management. The stocks do have a voice in management because stockholders are those people who are the owners of the company. So they can have their say in the decisions of the company. Any major decisions, any expanding or closing or any kind of thing, they have their say in the decisions of the company. और वो company की किसी भी चीज़, किसी भी मामले की किसी भी टाइम पे वो एनालिसिस करवा सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि कैसे कंपनी जा रही है, कंपनी में क्या डिसीजन होना चाहिए, सजेशंस दे सकते हैं. बट इन केस ऑफ बॉन्ड होल्डर्स आर टाइप ऑफ क्रेडिटर्स, क्योंकि उन कंपनी जो है वो डेटर होती है फॉर द बॉन्ड होल्डर्स, तो वो अपने सब डेट पे कर रही होती है टू द बॉन्ड होल्डर्स. तो बॉन्ड होल्डर्स कंपनी के लिए क्रेडिटर्स होते हैं. सो क्रेडिटर्स डोंट हैव एनी राइट टू हैव देयर से इन द मैनेजमेंट, या उनकी कोई भी बात या किसी भी डिसीजन में वो इंटरफेयर नहीं कर सकते. सो योर स्टॉक होल्डर्स हैज वॉइस इन मैनेजमेंट व्हाइल योर बॉन्ड होल्डर्स डू नॉट हैव एनी वॉइस इन मैनेजमेंट. देन वी हैव द वोटिंग राइट्स. व्हेन वी टॉक अबाउट द वोटिंग राइट्स, इट इज फॉर द स्टॉक होल्डर्स, बिकॉज स्टॉक होल्डर्स are the owners of the company. They do attend the annual general meetings. They are the part of the board of directors. So board of directors or your meeting of the stockholders in annual general meeting or any other kind of a meeting for all the stockholders do have the voting right. वो किसी भी डिसीजन के अगेंस्ट वोट कर सकते हैं, पॉजिटिव यस और नो कर सकते हैं उनकी, और किसी और डिसीजन को कर सकते हैं कि भी ये डिसीजन लेना चाहिए, ऐसा सजेशन हो जाए, सजेशन में वोटिंग राइट्स ले सकते हैं. सो दे डू हैव द वोटिंग राइट, बट बॉन्ड होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स. दे डोंट हैव एनी वोटिंग राइट and they are not the part of the stockholders, or we can say they are not the part of the ownership.
Then we have maturity. Yes, bonds have a finite or the defined maturity, because whenever we say the bond is being issued for 20 years, bond is being issued for 30 years, for 50 years, this is a defined maturity, that this is a certain date at which the bond is going to mature. Then we have stocks. Stocks are not defined. They are not the defined one. They do not have any maturity. Reason, whenever we invest in a stock or in a corporation, we have an assumption of going concern. The going concern assumption says that the company, that we assume that the company will be a going concern, it will be working or performing forever. तब तक जब तक या तो कंपनी बैंकरप्ट नहीं हो जाती, या तो कंपनी के वैसे ही क्लोज नहीं किया जा सकता है, उसके स्टॉक होल्डर्स उनको बंद कर देते हैं, या आप अपना स्टॉक बेच देते हो. तो आप जब अपना स्टॉक जब तक रखते हो अपने पास तो तब तक गोइंग कंसर्न, अदरवाइज आप स्टॉक बेच देते हो, आप कहते हो कि यू आर नॉट द ओनर ऑफ द कंपनी एनी मोर. तो आपकी क्योंकि डिफाइंड मेच्योरिटी नहीं होती कि जी इसकी कब तक ये मेच्योर होगा, या कब आप अपने स्टॉक्स वापस लेके जो आपने इन्वेस्टमेंट की है अपने स्टॉक्स के अंदर या शेयर्स के अंदर, उस इन्वेस्टमेंट में आपको सिर्फ एक परसेंटेज रिटर्न मिल रहा होता है. कभी ऐसा नहीं होगा कि आप शेयर वापस लेके जो आपने इन्वेस्टमेंट की है वो आपको कंपनी आपको पैसे वापस कर दे, ऐसा नहीं होता. कंपनी आपको सिर्फ रिटर्न देती है. हाँ, इफ यू वांट टू सेल योर स्टॉक्स तो आप मार्केट में जाते हो, सेकेंडरी मार्केट ट्रांजेक्शन होती है, सेकेंडरी मार्केट में जाके अपने स्टॉक्स बेच देते हो. बट द कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न, क्योंकि कंपनी के स्टॉक्स कभी खत्म नहीं होते, ना ही उसकी कोई सर्टेन मेच्योरिटी होती है. दैट मींस इट्स मेच्योरिटी इज नॉट डिफाइंड, बट इन केस ऑफ बॉन्ड्स इट इज डिफाइंड. Then we talk about return. In case of stocks, it is a dividend, and dividend on the discretion of the board of directors, that it is the decision of the board of directors whether to give the dividend for the year or not, for another year or for 5 years. Maybe वो 5-10 years तक dividend ही ना दे, उसके बाद first dividend मिल रहा हो, या किसी दिन year देते हैं किसी year नहीं देते. That depends on the decision of the board of directors and whatever performance they see in the company, कि company किस तरह perform कर रही है, whether they have to give the dividend or not. Then we have bond. बॉन्ड्स में आपकी जो रिटर्न होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड रिटर्न. जैसे कि हम यहाँ पे फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट्स की बात करते रहे हैं, दैट फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट जो कूपन इंटरेस्ट रेट होता है वो आपको परसेंटेज रेट बताता है, वो एक सर्टेन रेट होता है जिसपे आपको पता होता है इन्वेस्टमेंट पे इतने मुझे पेमेंट मिलनी है हर साल. फिर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे, क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न होंगे, कितनी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न आ रहा है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ यील्ड. तो आपके बॉन्ड्स में एक फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट होती है, व्हाइल इन केस ऑफ स्टॉक्स इट इज डिविडेंड एंड ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड इट इज नॉट डिफाइंड. कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं होती. इन केस ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक इट इज, बट इन केस ऑफ कॉमन स्टॉक इट इज नॉट. Then we have claims on asset on income on liquidation. In case of liquidation, आपकी liquidation क्या चीज होती है? liquidation ये है कि आपकी कंपनी liquidate हो जाए, bankrupt हो जाए, या कंपनी खत्म हो जाए, आप उसको liquidate कर देते हो, उसके सारे assets liquidate कर देते हो, सारे assets को बेच देते हो. So that is liquidation. So when we have claims on asset on assets income or income on liquidation, for example आपकी claims on asset इस तरह से होता है कि आपकी कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, सारी बैंकरप्ट होगी, कंपनी इन डिफॉल्ट है. अब उसके सारे के सारे एसेट आपके क्या करेंगे, आपकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन या आपकी जो भी एक अथॉरिटी होगी, रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो उसके सारे एसेट्स उसके पोजीशन में ले लेंगे. उसके बाद वो उनके ऑक्शन करवाते हैं और उनके सब एसेट्स बेचे जाते हैं. उनके एसेट्स जब बेचे जाते हैं तो उनसे जो भी अमाउंट आती है, तो द फर्स्ट अमाउंट इज पेड टू द क्रेडिट टू द योर एम्प्लॉयज और योर कस्टमर्स एंड देन टू द क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स के बाद वो पे की जाती है आपके स्टॉक होल्डर्स को. जब भी आप बात करते हो डिस्ट्रीब्यूशन की, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में भी ये होता है, हम आगे भी पढ़ेंगे तो थोड़ा और डिटेल बता देंगे कि उसके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में भी होता है कि सबसे पहले जब पे आपके पास कुछ इनकम आती है ऑपरेटिंग इनकम, दैट इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू योर क्रेडिटर्स. फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स हमने जितना डेट दिया था उसके ऊपर इतनी इंटरेस्ट पेमेंट है, पहले तो इंटरेस्ट पेमेंट पे करो, उसके बाद टैक्स पे करो, टैक्स पे करने के बाद जो अमाउंट रह जाती है दैट इज डिवाइडेड एज डिविडेंड टू द स्टॉक होल्डर्स. सो जब भी हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात करेंगे या लिक्विडेशन की बात करेंगे, लिक्विडेट होने के बाद जब एसेट्स बेच दिए आपने सारे, तो एसेट्स के ऊपर जो क्लेम आएगा वो सबसे पहले आपके क्रेडिटर्स की जो अमाउंट रहती है उनको जाएगा, और आखिर में अगर कुछ बचे आपके एम्प्लॉयज, आपके कस्टमर्स, इन सब के पास जाएगा. आखिर में जो अमाउंट बच जाएगी वो जाके आपके स्टॉक होल्डर्स को मिलती है. हम क्योंकि इस और इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी यही होता है. तो दैट मीन्स के बॉन्ड होल्डर्स आर प्रेफर्ड ओवर कॉमन स्टॉक होल्डर्स इन केस ऑफ क्लेम्स ऑन एसेट और इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. सो आपके बॉन्ड होल्डर्स को प्रेफरेंस दी जाती है, स्टॉक होल्डर्स को लेस प्रेफरेंस दी जाती है एज कम्पेयर टू योर क्रेडिटर्स. सो दीज आर मेन 5 की डिफरेंसेस बिटवीन द बॉन्ड्स एंड द स्टॉक्स. लेट्स लुक एट व्हाट इज अ स्टॉक. व्हेनेवर वी टॉक अबाउट स्टॉक, यहाँ हम बात करते हैं शेयर है,
तो शेयर्स हो गए या स्टॉक्स हो गए, तो उनका ये होता है कि फॉर एग्जांपल क्या आपके दिमाग में क्या आता है, स्टॉक इज सिंपली अ पीस ऑफ पेपर. दिस इज अ पीस ऑफ पेपर. इसके साथ यस वी डू हैव अ डॉक्यूमेंट विद डिटेल्स, बट वी डोंट हैव दिस स्टॉक की यहाँ पे वैल्यू लिखी हो जाएगी, उसके ऊपर कुछ चीजें लिखी होंगी जी हमने कंपनी के शेयर्स खरीद लिए. इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर और अ पीस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो स्टॉक जब भी दिमाग में आते हैं, शेयर्स आते हैं, तो दिमाग में एक ही बात आती है कि वो स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ पे शेयर्स बिक रहे हैं, खरीद रहे हैं. लेकिन आपने कोई पीस ऑफ पेपर अगर आप में से कभी भी किसी ने इन्वेस्टमेंट की हो, एंड आई वुड सजेस्ट कि इन्वेस्टमेंट करें जस्ट इन केस कि आप प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड कर सकें उन चीजों को, तो वो ये देखते हैं कि वो पीस ऑफ पेपर होगा. So now let's look at different types of stock. What are different types of stock, or what stock actually is? Stock या शेयर, जब भी आप स्टॉक के नाम लेते हैं, शेयर के नाम लेते हैं, एक ही चीज होती है. और whatever comes to your mind is एक piece of paper. एक piece of paper है, या आपके दिमाग में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन या स्टॉक एक्सचेंज आ जाते हैं कि भाई स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स बिक रहे हैं, सेल हो रहे हैं, उनकी प्राइसेस आ रही है ग्रीन में, रेड में, ये सब वैल्यू, ये आपके दिमाग में जब भी आप शेयर्स की बात करते हैं. शेयर जो है वो जनरली कंपनी की ओनरशिप पीस ऑफ पेपर होता है विद ओनरशिप कि आप कंपनी को ओन करते हो, कंपनी के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है. और आपकी जो दिमाग में आता है इट्स सिंपली अ पीस ऑफ पेपर. यस इट्स अ पीस ऑफ पेपर और अ सिंपल कॉन्ट्रैक्ट और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट. जब भी आप शेयर्स या स्टॉक को डिफाइन करोगे, इट्स अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विच इंश्योर्स दैट यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी और विच इंश्योर्स द ओनरशिप ऑफ सर्टेन कॉर्पोरेशन. We have two different types of stock or shares, preferred stock and common stock. Preferred stock is a stock with the fixed dividend. It is a kind of or a type of ownership with a fixed dividend but no voting rights. In case of common stock, it is another kind of ownership with residual income with voting rights and is a riskier investment. ये आपकी जब भी हम common stock की बात करते हैं तो it's kind of a residual stock or the residual income with voting rights and is a riskier investment. जब हम ये कहते हैं कि it's a riskier investment, that means कि आपके as compared to preferred stock या as compared to bonds, तो bonds की का रिस्क थोड़ा कम है क्योंकि फिक्स डिविडेंड मिलता है. प्रेफर्ड स्टॉक का थोड़ा सा कम है, क्योंकि उसके ऊपर भी फिक्स डिविडेंड मिलता है. लेकिन कॉमन स्टॉक के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, यू डोंट नो आपको कब डिविडेंड मिल रहा है, यू डोंट नो आपको कितने परसेंटेज डिविडेंड मिल रहा है, कितना परसेंटेज रिटर्न मिल रहा है. सो दैट्स व्हाई इट्स अ बिट रिस्की इन्वेस्टमेंट बट हाई रिस्क हाई रिटर्न. सो इसके ऊपर रिटर्न भी उतना ही ज्यादा होता है. Now let's look at a few of the characteristics of the preferred stock. A preferred stock is a type of stock that promises usually a fixed dividend but at the discretion of the board of directors. So preferred stock is a type of stock that promises a fixed dividend. That means ये इसकी एक one characteristic, it's a fixed dividend. आपको जो भी dividend मिलता है वो एक fixed amount of dividend होता है. अब होता क्या है कि जब भी आप कंपनी ने डिसाइड किया कि जी हमने स्टॉक्स इशू करने हैं, स्टॉक्स इशू करने के बाद कंपनी जो है वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स बता दी कि जितने नंबर ऑफ शेयर्स है. इन नंबर ऑफ शेयर्स में से लेट्स सपोज कंपनी ऑफर टू इशू 100,000 शेयर्स. तो कंपनी ने डिसाइड किया कि 100,000 शेयर ईच एट ₹10, तो 100,000 शेयर्स इशू कर दिए. 100,000 में से डिसीजन ये कि 20,000 शेयर्स आर फॉर द प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स एंड 80% शेयर्स आर फॉर द कॉमन स्टॉक होल्डर्स. Now when we talk about preferred stock holders, तो preferred stock holders में आपकी कुछ चीजें साथ डिफाइंड होती है कि preferred stock holders में आपका फिक्स डिविडेंड होगा. कब इसको प्रेफरेंस दी जाएगी इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और इसको प्रेफरेंस दी जाएगी इन केस ऑफ क्लेम्स ऑन एसेट्स. अब इसका जो फिक्स डिविडेंड होता है और इसीलिए इसको प्रेफर्ड स्टॉक कहते हैं, क्योंकि इसको प्रेफरेंस दी जाती है ओवर कॉमन स्टॉक. ठीक है, इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड क्लेम्स ऑफ एसेट. इसके अलावा नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आपके कॉमन स्टॉक होल्डर्स हैव मच बेटर राइट्स देन द प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स. जो आपके प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स होते हैं they have a fixed dividend. एक certain percentage बता दी कि whatever income is earned उसको 5% would go to preferred stock holders. 1% else उसके अलावा ये define किया जा सकता है कि जी whatever is earned उसके ₹100 per stock आपको दिया जाएगा, ₹100, and it will increase or it will grow with certain percentage. के एक साल 100 अगर dividend दिए तो अगले साल इसकी 10% increase करके 110 दे देंगे. तो that all depends कि आप किस तरीके से value find out कर रहे हो. ना एक चीज और जो इसके अंदर इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इसके जब हम ये कहते हैं कि इनको प्रेफरेंस दी जाती है तो
एक चीज कि इनके वोटिंग राइट्स नहीं होते, दे डोंट हैव एनी वोटिंग राइट्स। तो हम जब भी प्रेफर्ड स्टॉक का जो कॉन्सेप्ट था वो निकला इस तरीके से था कि जब कंपनीज जो है दे यूज टू फाइनेंस थ्रू जस्ट जनरली कॉमन स्टॉक होल्डर, सिंपल स्टॉक होल्डर उन्हें कहा जाता था। फिर हमारे जब ये डिफाइन हुए कि आपके डिफरेंट स्टॉक होल्डर्स या आपके डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स कौन कौन से हैं, तो जब इन्वेस्टर्स थे उनमें कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स थे जो कि रिस्क अवर्स हैं, कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो रिस्क टेकर्स हैं। रिस्क अवर्स वो हैं जो कि कम थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं पर दे डू वांट टू हैव काइंड ऑफ रिटर्न, तो वो क्या करते थे, वो फिर बॉन्ड्स में या अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट हो जाती थी। आपके जो स्टॉक होल्डर्स होते थे वो सिर्फ वो लोग होते थे जो कि रिस्की इन्वेस्टमेंट, ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, दे डू टेक रिस्क, तो वो रिस्क टेकर्स होते थे। In order to attract those risk averse into this equity financing kind of thing, तो आपकी कंपनीज क्या करती थी कि जी कम हमारे पास कम स्टॉक होल्डर्स आते हैं, उनको बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब डिफाइन हो गया कि इस काइंड के इन्वेस्टर्स होते हैं, तो उनको बढ़ाने के लिए या उनको अट्रैक्ट करने के लिए एक नए काइंड ऑफ स्टॉक की ऑप्शन निकला। वो ऑप्शन क्या था कि जी आप प्रेफर्ड अपने शेयर्स को प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स कह दो, प्लस उनको वोटिंग राइट्स ना दो कि दे आर द ओनर्स बट दे डोंट हैव द वोटिंग राइट, और उनको जो है उसके अंदर उनको थोड़ी प्रेफरेंस दे दो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और उनकी जो डिविडेंड, उनका जो रिटर्न है ना वो फिक्स्ड कर दिया जाए। अब फिक्स्ड रिटर्न का मतलब क्या है कि कंपनी जो है आपका इन्वेस्टर जब भी इन्वेस्टमेंट करेगा उसको एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ रिटर्न मिलेगा, ये उसको पता है। जब उसको पता, जब मैं एक इन्वेस्टमेंट करी मुझे पता है इतना फिक्स्ड रिटर्न मुझे मिलना ही मिलना है, इसीलिए बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट होती है, तो फिक्स्ड इतना मिलना ही मिलना है, आई वुड लव टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। प्लस सेकेंडली ये है कि आपकी जो स्पेसिफिक अब जो अमाउंट आपको रिटर्न की अमाउंट मिल रही है, जब आपको पता है कि इतना रिटर्न मिल रहा है तो आप उसकी परसेंटेज रिटर्न भी फाइंड आउट कर सकते हो, जबकि कॉमन स्टॉक में आपको डिविडेंड एग्जैक्टली वैसा नहीं मिल रहा होता, आपको नहीं पता कि आपकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न कितना। देन वी डू कॉल्ड दीज प्रेफर्ड स्टॉक एज हाइब्रिड और कॉसी सिक्योरिटी। हाइब्रिड और कॉसी सिक्योरिटीज को क्यों कहा जाता है? हाइब्रिड मीन्स सेमी, हाइब्रिड मीन्स मिक्स्ड, कि मिक्स्ड 1 and 2 दो चीजें मिक्स करके आपने कुछ बनाया, दैट्स हाइब्रिड। और कॉसी सिक्योरिटी, कॉसी सिक्योरिटी इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि कॉसी मीन्स सेमी सिक्योरिटी, दैट मीन्स के आपकी इट्स हैज हाफ ऑफ या सेमी कॉसी स्टॉक, इसको कॉसी शेयर, semi share, so that means इसमें half of the characteristics are of the stockholders and half of the characteristics are for the are of the bondholders या creditors। अब ये mixed है, इसमें जितने भी characteristics हैं both the characteristics are mixed from bonds and shares, stocks या shares। तो अब क्या है, let's suppose they are the owner of the company and they do get dividend, owner of the company and dividend, this is what makes it a stock। They have no voting rights and they have fixed return, no voting rights and fixed return, that make it as a part of a part of that another debt instrument। तो वो जो आप बॉन्ड्स की पार्ट बना रहा है, बॉन्ड्स में भी फिक्स्ड रिटर्न होता है और नो वोटिंग राइट्स होते हैं, इसी तरह प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स में भी नहीं होते। लेकिन जब कॉमन स्टॉक की बात करते हैं तो कॉमन स्टॉक में उनके एसेट्स को जितने भी आपके रिटर्न आ रहा था, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट ओवरऑल इन्वेस्टमेंट होती है उसको डिविडेंड फॉर्म में होती है और ओनरशिप होती है, तो ये दोनों चीजें मिक्स्ड हैं आपकी प्रेफर्ड स्टॉक के कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। फिर प्रेफर्ड स्टॉक डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट्स, they do not have any voting rights, that means कि वो इनके पास वोटिंग राइट नहीं है, वो कंपनी की कोई भी डिसीजन होगा, they do attend annual general meetings but they do not have any voting right। आपके एनुअल जनरल मीटिंग करते हैं, वो सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स निकलवा के देख सकते हैं, आपके ओन मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं, देख सकते हैं, but they do not have any voting, they are the owners, they do exercise all the rights as common shareholder except that they do not have any voting rights। सो क्योंकि आपके वोट वो नहीं कर सकते उसे, इसीलिए इसको थोड़ा सा मिक्स्ड काइंड ऑफ स्टॉक बनाया गया है। तो उसमें वो जब भी वोट हुआ करेंगे तो कोई भी डिसीजन होता है उसमें ये वोट नहीं कर सकते, दे आर द ओनली ओनर्स, और अगर वो वोट करना चाहते हैं मैनेजमेंट में या उसके डिसीजंस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो दे मस्ट चेंज देयर प्रेफर्ड स्टॉक टू द कॉमन स्टॉक, दे मस्ट हैव अ कॉमन स्टॉक होल्डिंग। Then we have preference over common stock in the payment of dividend। Payment of dividend या distribution of income जब भी की जाती है तो आपको कुछ preferences दी जाती है। कुछ चीज़ हम देख लेते हैं कि किस तरीके से distribution of income या claims of asset आता है। पहले तो ये देखा जाता है कि when we talk about claims on assets, in case of claims on asset किस तरीके से जाते हैं? The first one is your customers। लेट्स सपोज आपके कस्टमर ने कुछ एक सर्टेन एडवांस पेमेंट्स की हुई थी और यू हैव टू प्रोवाइड देम द प्रोडक्ट, उसके बाद बाकी पेमेंट्स होंगी, और
अब कंपनी बैंकरप्ट हो गई, लिक्विडेट हो गई, और कंपनी ने किसी भी जो भी कस्टमर्स उनको प्रोडक्ट्स तो नहीं दिए, लेकिन उन्होंने जो एडवांस पेमेंट्स ली हुई थी वो सारी पेमेंट्स दे हैव टू मेक। तो जब भी कंपनी लिक्विडेट होगी तो सबसे पहली चीज जो उनके एसेट्स को बेचने के बाद अमाउंट जाएगी वो आपके कस्टमर्स को जाएगी। फिर आपकी और किस्म की एजेंसीज जो हैं, कोई और जिसके पब्लिक एजेंसीज जिनको पैसे जाने, फिर आपके एम्प्लॉयज होते हैं, जो अमाउंट एम्प्लॉयज की रहती है वो एम्प्लॉयज की तरफ चली जाती है। फिर थर्ड पे आपके आ जाते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन कौन से? आपके बॉन्ड होल्डर्स, वो सब बैंक्स, वो सब, या आपके कोई सप्लायर्स हैं जिनसे आपने जो है चीजें ली हुई और उनके पैसे नहीं दिए हुए, ये सब लोग आपके क्रेडिटर्स में आ जाते हैं। वो सब लोग जिनके आपने पैसे देने या कोई पेमेंट्स करनी है वो दे ऑल आर योर क्रेडिटर्स। तो जब भी क्लेम ऑन एसेट होगा, पहले कस्टमर, एम्प्लॉयज, क्रेडिटर एंड देन योर स्टॉक होल्डर्स। अब स्टॉक होल्डर्स में भी देन यू हैव योर स्टॉक होल्डर्स। स्टॉक होल्डर्स में भी पहले प्रेफर्ड स्टॉक एंड देन कॉमन स्टॉक। तो आपके पहले जब भी क्लेम ऑन एसेट होगा तो क्रेडिटर्स तक पे कर दिया, देन जो रिमेनिंग अमाउंट होती है वो जाती है आपके स्टॉक होल्डर्स में। अब स्टॉक होल्डर्स में भी पहले प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को पैसे दिए जाते हैं और उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होती है वो आपके कॉमन स्टॉक होल्डर्स को दिया जाता है। सो दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ योर क्लेम्स ऑन एसेट, कि पहले कस्टमर्स, देन एम्प्लॉयज, क्रेडिटर्स, देन आपके प्रेफर्ड स्टॉक एंड देन आपके कॉमन स्टॉक होल्डर्स। इसीलिए कॉमन स्टॉक होल्डर्स को रेजिडुअल इनकम होल्डर्स कहते हैं। अच्छा, व्हेन वी टॉक अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, when we talk about distribution of income, अब distribution of income में क्या होता है? The first thing is distribution of income में भी आपके पहले आपके आ जाते हैं creditors। अगर एम्प्लॉयज की कोई अमाउंट है तो एम्प्लॉयज, देन आपके क्रेडिटर्स, देन आपके प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स एंड देन आपके कॉमन स्टॉक होल्डर्स। एक चीज ये देख लें कि आपके किस तरीके से क्लेम्स, जब भी हम इनकम की बात करते हैं, अब अगर लेट्स सपोज नेट इनकम स्टेटमेंट को देखो तो सबसे पहले क्या चीज आती है? आपकी सेल्स आ जाती है, सेल्स माइनस योर सीजीएस। सीजीएस से आपके पास रिमेनिंग अमाउंट क्या रह जाती है? ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आपकी अमाउंट आपके आ जाते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बाद यू हैव ऑपरेटिंग इनकम। अब ये जो इनकम है, ओरिजिनल इनकम कंपनी की, ये आती है एक्सपेंसेस पे करने के बाद आपकी ऑपरेटिंग इनकम रह जाती है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर ही आप अपने एम्प्लॉयज की सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर सेलिंग एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस सब पे कर देते हो। जो ऑपरेटिंग इनकम होती है इसमें से माइनस किया जाता है, दिस ऑपरेटिंग इनकम में से माइनस करते हैं आपके इंटरेस्ट अमाउंट को। दैट मीन्स, और इंटरेस्ट किसको देना होता है? आपके सब जितने भी बॉन्ड होल्डर्स हैं या आपके लोन जिनसे लिया क्रेडिटर्स, काइंड ऑफ क्रेडिटर्स, तो जितने भी अमाउंट है आपके पहले क्रेडिटर्स को जाती है। इसका मतलब इनकम में से पहली इनकम का जो शेयर है वो तो चला गया इंटरेस्ट होल्डर्स, इंटरेस्ट जिन्होंने प्रोपोर्शन इंटरेस्ट को चला गया आपके क्रेडिटर्स को। उसके बाद जो इनकम रह जाती है जिसको अर्निंग बिफोर टैक्स कहते हैं, फिर आपके जी टैक्स अमाउंट में चली जाती है। टैक्स के बाद आपके पास जो रह जाती है अर्निंग, जो नेट इनकम आखिर में, दैट इज योर नेट इनकम। ये नेट इनकम डिस्ट्रीब्यूट की जाती है फर्स्ट टू रिटेन अर्निंग्स, कि कुछ अर्निंग्स आप रिटेन कर लेते हो, देन आपके प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को, और फिर आपके कॉमन स्टॉक होल्डर्स को। तो जो भी बच जाता है उसमें से जो नेट, जब सबको पे कर लिया, इंटरेस्ट कर लिया, टैक्स कर लिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कर लिया, एंड में आपके नेट इनकम, वो नेट इनकम में से कुछ अमाउंट जो है रिटेन कर ली जाती है जी नेक्स्ट ईयर के लिए वो कैश फ्लो होगा, या नेक्स्ट ईयर के लिए वो बिगिनिंग बैलेंस होता है, रिटेन अर्निंग्स रख ली। रिटेन अर्निंग्स रखने के बाद जो अमाउंट रह जाती है वो आप प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को दे देते हो कि जी इतना फिक्स डिविडेंड था, ये प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को भी पे करने के बाद जो अमाउंट रह जाती है वो आप पे करते हो किसको? कॉमन स्टॉक होल्डर्स को, बिल्कुल एंड में। तो इसीलिए हम उसको रेजिडुअल, जो रेजिडुअल बच जाता है एट द एंड, बच जाती है एक्स्ट्रा अमाउंट, जो कहेंगे एक्स्ट्रा ही, रेजिडुअल जो बच जाता है वो दे दी जाती है आपके कॉमन स्टॉक होल्डर्स को। तो रेजिडुअल इनकम इज गिवन टू योर कॉमन स्टॉक होल्डर्स, इसीलिए उनको रेजिडुअल इनकम होल्डर्स भी कहा जाता है। सो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में भी पहले क्रेडिटर्स को, प्रेफर्ड स्टॉक को, और देन आखिर में कॉमन स्टॉक किया जाता है प्रेफर्ड। तो हम कहते हैं कि आपके कॉमन स्टॉक होल्डर्स के ऊपर प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को प्रेफरेंस दी जाती है इन केस ऑफ लिक्विडेशन एंड similarly in case of distribution of income. Now let's look at some of the characteristics of the common stock. Well, common stock represents a residual ownership position in the corporation. जब भी हम residual ownership position, क्योंकि जो भी अमाउंट एट द एंड बच जाती है, या आखिर में जब हम बात करते हैं तो आपके रेजिडुअल ओनरशिप होती है, क्योंकि ओनरशिप तो है बट इट्स अ रेजिडुअल वन, क्योंकि एट द एंड आपको क्लेम्स ऑफ एसेट या इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मिलता है। देन जब व्हेन वी टॉक अबाउट द वोटिंग राइट्स, अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें देख लेते हैं कि वोटिंग राइट्स है। वोटिंग राइट्स
का मतलब क्या है कि आपका स्टॉक होल्डर्स है, लेट्स सपोज कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग हुई है। एक चीज थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट सा है, इफ यू लुक एट दिस थिंग, वी हैव दिस एनुअल जनरल मीटिंग जो कि आपके सारे स्टॉक होल्डर्स जो है वो आते हैं उसके अंदर। एनुअल जनरल मीटिंग में वोट किया जाता है। Okay, now let's look at some of the characteristics of the common stock. Well, common stock represents a residual ownership position in the corporation. जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि उसके आपकी रेजिडुअल इनकम आ रही होती है, रेजिडुअल जितना भी क्लेम्स ऑन एसेट्स या लिक्विडेशन या जो भी किस्म की लिक्विडेशन के केस में या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में जो बच जाता है वो आपके कॉमन स्टॉक होल्डर्स को दिया जाता है। तो कॉमन स्टॉक होल्डर्स हैव अ वोटिंग राइट। अब वोटिंग राइट ये बहुत एक काइंड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और वोटिंग राइट का मतलब क्या है, एक कुछ देख लेते हैं। फर्स्ट ये कि लेट्स सपोज अगर फर्स्ट टाइम कंपनी स्टार्ट हुई है, जो फर्स्ट टाइम कंपनी स्टार्ट होती है तो उसके अंदर कंपनी के पास कुछ वो लोग होते हैं जो कि कंपनी का आइडिया लेके आए होते हैं, जिन्होंने स्टार्ट की होती है। वो क्या करते हैं कि मैक्सिमम शेयर होल्डिंग अपने पास रखते हैं, जो रिमेनिंग रह जाती है वो दे देते हैं, बाकी इक्विटी फाइनेंसिंग करते हैं बाकी जनरल पब्लिक से। लेट्स सपोज के दो लोग थे, उन्होंने 51% शेयर अपने पास रख लिया और बाकी 49% शेयर जो है वो मार्केट में इशू कर दिए। तो 51% शेयर आपके पास होने का क्या मतलब है कि कंपनी जो है वो उसके पास 51 शेयर, दे आर द मेन ओनर्स ऑफ द कंपनी। अब फर्स्ट टाइम जब मीटिंग की जाती है तो हम इसको स्टैट्यूटरी कमेटी बनाई जाती है जिसके अंदर मेन लोग होते हैं जो कि शेयर होल्डर्स ही होते हैं, और फिर एक स्टैट्यूटरी मीटिंग की जाती है और जो स्टैट्यूटरी कमेटी बनाई जाती है वो आपके सारे स्टॉक होल्डर्स को और कुछ मेन लोगों को मिला के की जाती है। फिर स्टैट्यूटरी मीटिंग में आपके सारे स्टॉक होल्डर्स प्रेफर्ड कॉमन सब आ जाते हैं। अब उसमें फिर कुछ मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं, और डिसीजंस के फर्स्ट टाइम जब किया जाता है तो फर्स्ट टाइम वोट किया जाता है। अब जितने ज्यादा शेयर्स होंगे उतनी ज्यादा वोटिंग होगी। तो इन दैट केस वी हैव, इफ वी हैव one vote that is equal to one share, depending कि कंपनी अगर इसका थोड़ा चेंज करना चाहे, but most of the time it is one vote is equals to one share। अगर एक वोट है तो इसका मतलब है आप एक शेयर है आपके पास, तो इसका मतलब आप एक दफा वोट कर सकते हो, अपना वन वोट पुट इन कर सकते हो। वो लोग जिनके पास 10 शेयर है वो 10 वोट कर सकते हैं, वो लोग जिनके पास 100 शेयर है वो 100 वोट कर सकते हैं। एक ही डिसीजन, लेट्स सपोज डिसीजन लिया जाता है कि ये इस बंदे को मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डिसाइड करना है, ये बंदा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अब एक बंदा 10 वोट डालता है, एक वोट डालता है, एक 100 वोट डालता है कि हाँ जी यार इसको तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होना चाहिए 100 वोट एक दफा मिल गए तो उसको काफी ज्यादा उसकी प्रेफरेंस हो जाती है। अब वो लोग जिन्होंने अपने पास 51% शेयर, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं 51% शेयर है उनके पास, इन 51% शेयर्स के साथ क्या होता है कि आपकी कंपनी जो है 51% वोट्स दे दिए, इसका मतलब है तो ओवरऑल वोट्स में से 51% वोट एक बंदे के साथ चलेगी, इसके मतलब वो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होगा ही होगा। बाकी रिमेनिंग 49% उसके अगेंस्ट भी हो तो भी 51% जो है वो ज्यादा अमाउंट है। तो दैट डिपेंड्स। जैसे नॉर्मली जो लोग कंपनी स्टार्ट करते हैं दे डू हैव मोर शेयर्स एंड मोर वोटिंग। अब फर्स्ट टाइम तो मीटिंग कीजिए, उसमें मीटिंग में शेयर होल्डर्स वोट करना शुरू करते हैं, हर कोई अपने नंबर ऑफ शेयर्स के अगेंस्ट नंबर ऑफ वोट्स किए जाते हैं। उसमें क्या होता है कि डिसाइड होता है कि कौन कौन आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आएगा। डिफाइन होगा ये लोग हैं, ये 10 लोग हैं जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आएंगे। इन 10 लोगों के ऊपर वोट किया जाता है कि क्या इस बंदे को होना चाहिए, और वो खुद भी वोट करते हैं। तो अगर एक बंदा है उसके पास 51% है और वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आना चाहिए तो वो अपने आप को खुद ही 51% वोट्स दे देगा। तो ये डिफरेंट वोटिंग की जाती है। अब वोटिंग करने के बाद आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर स्टार्ट होते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज, फर्स्ट मीटिंग होती है, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, उसके बाद वोटिंग की जाती है। वोट करने के बाद आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सिलेक्ट किए जाते हैं। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वोट करते हैं एंड दे सिलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी। दिस प्रेसिडेंट देन सिलेक्ट द सीईओ। अब सीईओ जो है वो आपका बाहर से आउटसाइडर भी हो सकता है कि वो प्रेसिडेंट की मर्जी है कि वो बाहर से कोई बंदा हायर कर ले, और एल्स प्रेसिडेंट खुद ही अपने आप को सीईओ बना सकता है या कंपनी के अंदर से ही किसी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सीईओ बना सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन द प्रेसिडेंट कि वो क्या करता है। इसको डुअल ओनरशिप अगर करना चाहते हैं या तो फिर आपकी क्या होती है कि डुअल लीडरशिप की जब बात करते हैं तो आपका प्रेसिडेंट और आपका सीईओ सेम हो जाता है। जो मोस्ट ऑफ द टाइम किसी कुछ कंपनीज में ऐसा है और कुछ कंपनीज में ऐसा है कि प्रेसिडेंट और सीईओ सेम बंदा नहीं होता। हर साल एनुअल जनरल मीटिंग होती है। कोई भी डिसीजन कंपनी का कोई भी डिसीजन होगा, लेट्स सपोज एक्सपेंडिंग करनी है, कोई ऐसा प्लांट है जो खत्म करना है, या कोई और नया डिसीजन लेना है, या न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग करनी है, और कहीं से लोन लेना है, कुछ और डिसीजन करनी है, इक्विटी फाइनेंसिंग करनी है, डेट फाइनेंसिंग करनी है, ये सब डिसीजन आपके एनुअल जनरल मीटिंग में आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस दिखाई जाती है, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनके एनालिसिस, और उसके बाद कितनी शेयर प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, शेयर प्राइसेस के ऊपर क्या इफेक्ट था, कितना रिटर्न आ रहा है, प्लस ये बाकी सारे मेजर डिसीजन की क्या क्या डिसीजन होना चाहिए, कहाँ से फाइनेंसिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, एक्सपेंडिंग वगैरह, ये सब डिसीजन।
वो सब आहिस्ता 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 सामने लाते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो या आपका प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट करता है या सीईओ रिप्रेजेंट करता है। सीईओ मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग जो कि पार्ट ऑफ शेयर होल्डर नहीं है, वो शेयर होल्डर मीटिंग नहीं अटेंड करते। अब उसके अंदर ये सब चीजें बता दी कि इसके ऊपर वोट क्या है। हर चीज के ऊपर वोट लिया जाता है आपके एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर से। दैट मीन्स दे हैव देयर से। अगर वो नहीं चाहते कि एक डिसीजन हो, वो नो कर सकते हैं। अगर वो ना वोट करें, अगर वो चाहते हैं कि ऐसा हो, तो वो अपना डिसीजन, अपना वोट दे सकते हैं। उसके अलावा वो अपने सजेशंस भी दे सकते हैं कि इसकी बजाय ये भी किया जा सकता है। तो दे हैव देयर वोटिंग राइट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग राइट है ये। उसमें एनुअल जनरल मीटिंग में फिर वोट करके डिफरेंट डिसीजन लिए जाते हैं। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अगर चेंज लाना है तो भी वोटिंग की जाती है। वैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का टेन्योर डिसाइड होता है कि इतना सर्टेन नंबर ऑफ टेन्योर उसका है। अच्छा, ये आपके वोटिंग राइट्स है। एक चीज होती है कि हर शेयर होल्डर्स के ऊपर लाजमी है कि वो जरूर अटेंड करे एनुअल जनरल मीटिंग, क्योंकि अलॉन्ग विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके एक स्पेसिफिक इनविटेशन जाता है आपके स्टॉक होल्डर्स को। अब वो स्टॉक होल्डर के ऊपर क्योंकि लाजमी है कि वो मीटिंग अटेंड करे, तो दैट मीन्स के द फर्स्ट थिंग इज के वो आपकी मीटिंग में शेयर होल्डर प्रेजेंट होगा। लेट्स सपोज अगर कोई मैं शेयर होल्डर हूं और मैं नहीं आ सकती, तो मैं अपनी जगह किसी और को, जो कि पार्ट ऑफ द कंपनी है, कोई और, मैं अपनी जगह किसी और शेयर होल्डर को प्रॉक्सी फॉर्म फिल करके, ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि कंपनी ने क्या डिसीजन रखा है कि एक आउटसाइडर भी आप को प्रॉक्सी दे सकते हो या किसी और शेयर होल्डर को। मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनी ये डिसाइड करती है कि आप नहीं आ सकते तो अपनी जगह किसी और स्टॉक होल्डर को कहो कि वो प्रॉक्सी लगा दे। अब प्रॉक्सी फॉर्म होता है, उस प्रॉक्सी फॉर्म के ऊपर फिल किया जाता है और उस बंदे का सर्टेन नाम लिखा जाता है, बताते हैं कि जी ये मेरे सजेशन है, अगर मेरी जगह कोई भी जो भी वोटिंग होगी उसमें मेरी जगह ये बंदा वोट कर देगा। लेट्स सपोज अगर मैं नहीं आई तो मेरी जगह कोई एबीसी बंदा वो गया, उसको मैंने प्रॉक्सी फॉर्म दिया हुआ था, वो भी शेयर होल्डर था, उसने अपने लिए जो वोट किया मेरी साइड से उसने वही वोट कर दिया। एक तरह से वोट जाया हो जाता है। यू हैव टू अटेंड द मीटिंग। अब 3-4 मीटिंग्स, अगर आप 3 कंसेक्यूटिव एनुअल जनरल मीटिंग नहीं अटेंड करते तो यू गेट द लेटर के जी आप स्टॉक होल्डर्स में कि कुछ होता है, कुछ लाजमी होता है कि एक मीटिंग अटेंड की जाए। प्रॉक्सी फॉर्म में आप अपनी जगह प्रॉक्सी के लिए कोई भेज सकते हो। अब एक चीज होती है प्रॉक्सीफाइड। प्रॉक्सीफाइड का क्या मतलब है? लेट्स सपोज मेरी कंपनी ने इशू किया जी 100,000 शेयर फर्स्ट टाइम करती है। अब कंपनी सेकंड पब्लिक ऑफरिंग, जो हमने फर्स्ट टाइम पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड पब्लिक ऑफरिंग करना चाह रही है। सेकंड पब्लिक ऑफरिंग का मतलब ये है कि और इक्विटी फाइनेंसिंग करना चाह रही है। और इक्विटी फाइनेंसिंग के लिए कंपनी क्या करेगी थी? पहली चीज 100,000 शेयर्स थे। 100,000 शेयर्स कंपनी और इशू करना चाह रही है। वो जो पहले 100,000 शेयर्स थे उनमें से 51% शेयर मेरे पास थे, मैं कंपनी के ओनर हूँ, और 49% शेयर जो है वो किसी और जनरल पब्लिक बाकी सब लोगों के अंदर थे। मैं इस वक्त अब 100,000 शेयर्स और इशू करी। अब वो जो 100,000 शेयर्स इशू किए जाएंगे, और इसमें एक चीज आती है प्रीएम्प्टिव राइट। प्रीएम्प्टिव राइट जो है वो आपके कॉमन स्टॉक होल्डर्स के पास होता है। प्रीएम्प्टिव और स्टॉक प्रॉफिट के पास भी होता है। ये एक राइट होता है कि लेट्स सपोज कंपनी ने दोबारा से अगर अपनी इक्विटी फाइनेंसिंग करनी है और नए शेयर्स इशू करेगी, तो व्हेनेवर कंपनी इशू अ न्यू शेयर, तो सबसे पहली चीज वो क्या करेगी? अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से पूछेगी। जो आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनसे ये बात पूछी जाती है कि जी फर्स्ट टाइम क्या हम जो नई इक्विटी फाइनेंसिंग करें या न्यू शेयर्स इशू करें, क्या आप में से कोई खरीदना चाहेगा इस सर्टेन प्राइस के ऊपर? तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं वो उनमें से शेयर्स खरीदेंगे जो नए शेयर्स इशू हो रहे हैं, और जो बच जाएंगे वो जाके जनरल पब्लिक में इशू किए जाते हैं। तो 100,000 शेयर्स इशू किए हुए, जो 100,000 और शेयर्स इशू करें उसमें से पहले पूछा जाता है आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से। जितने शेयर्स आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स खरीद लेते हैं, रिमेनिंग अमाउंट आपकी दे दी जाती है आपके जनरल पब्लिक को। अब इसमें ये चीज क्लियर करना कि क्या वाकई कि इसमें इसका क्या रीजन है, ये प्रीएम्प्टिव राइट इसको कहते हैं। ये प्रीएम्प्टिव राइट क्यों दिया जाता है? पहली चीज के आपके शेयर होल्डर्स के जो ओनरशिप है वो प्रोटेक्ट रहती है, ठीक है, कि जो ऑलरेडी, और उनको जो है वो एक तरह से काइंड ऑफ सिक्योरिटी देते हैं, और उनकी ओनरशिप स्ट्रांग होती है। तो ओनरशिप स्ट्रांग होती है और वो दे रिमेन प्रोटेक्टिव, और उनकी थोड़ी सी ओनरशिप वो प्रोटेक्शन में आ जाते हैं। अब किस तरह से? पहली चीज तो ओनरशिप स्ट्रांग होगी, दैट मीन्स किसी के पास लेट्स सपोज 10 शेयर है, उसने 20 शेयर खरीद लिया, तो उसकी ओनरशिप ज्यादा होगी है 20 शेयर, दैट मीन्स 20 शेयर के ऊपर उसको रिटर्न मिलेगा। एक तो स्ट्रांग होगी। दूसरी चीज ये कि प्रोटेक्ट किस तरह से किया जाए। प्रोटेक्ट इस तरह किया जाता है कि एक चीज होती है प्रॉक्सीफाइड। लेट्स सपोज वो जो 100,000 नए शेयर्स इशू किए गए थे वो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नहीं पूछा जाता, प्रीएम्प्टिव राइट नहीं दिया जाता, और जाके जनरल पब्लिक को दे देते। अब जनरल पब्लिक में आपके कॉम्पिटिटर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। कॉम्पिटिटर्स आप अपनी जगह किसी और को स्टॉक होल्डर बनाकर, अपनी जगह किसी और को स्टॉक होल्डर बनाकर आपके सारे शेयर्स खरीद ले,
वो सारे शेयर्स खरीदने के बाद 100,000 शेयर ऑलरेडी कंपनी के थे, जिसमें से 51% आपके पास थे, 49 पब्लिक के पास थे, और रिमेनिंग 100,000 और इशू कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि टोटल 200,000 शेयर्स थे। 200,000 में से सिर्फ रिमेनिंग 25% ही ओरिजिनल ओनर्स के पास रह गए ना, अगर उनको दोबारा इशू ऑफर नहीं किया शेयर्स, तो आपके 100,000 शेयर्स में से मैक्सिमम जो आपके कॉम्पिटिटर ने खरीद लिए। कॉम्पिटिटर क्या करेगा कि उठा के अपने सारे शेयर खरीद लिए, उसकी शेयर होल्डर में आ जाएगा, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लेगा। और एक चीज होती है होस्टाइल टेक ओवर, वो टेक ओवर कर सकता है। इसको प्रॉक्सी फाइट कहते हैं कि आपके होस्टाइल टेक ओवर होता है, आपके जो शेयर कंपनी न्यू शेयर्स इशू करती है वो सारे के सारे आपके कॉम्पिटिटर्स खरीद लेते हैं। कॉम्पिटिटर जो है वो फिर क्या करते हैं, कंपनी की इनसाइड इन्फॉर्मेशन लेके उनको कम्पीट करने की कोशिश करती है, या ये करती है कि उसको टेक ओवर करने की कोशिश करती है कि जी ज्यादा शेयर तो हमारे पास है, हम उसको टेक ओवर कर लें। इसीलिए इस राइट को प्रोटेक्ट करने, ये जो टेक ओवर करने का सीन होता है कि वो खुद तो नहीं खरीदते सारे शेयर्स, अपनी जगह किसी से को खरीदवाते और एज शेयर होल्डर बना के भेज देते हैं, या अपनी मीटिंग्स में उसको भेज देते हैं। इसको हम प्रॉक्सी फाइट कहते हैं। अब कंपनी ओनर्स के पास ऑलरेडी 51% शेयर थे, बाकी जनरल पब्लिक को दे दिए। अब 50 और शेयर्स खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब 51% ओनरशिप तो नहीं रही। तो इसीलिए आपके शेयर होल्डर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रीएम्प्टिव राइट दिया जाता है कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, उनको न्यू शेयर्स इशू किए जाते हैं। वो अपने न्यू शेयर्स रख के अपनी ओनरशिप को स्ट्रेंथन करते हैं, और उसके बाद जो रिमेनिंग रह जाते हैं वो जनरल पब्लिक होते हैं, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एंड सिक्योर एंड अगेंस्ट दैट प्रॉक्सी फाइट काइंड ऑफ थिंग इन होस्टाइल टेक ओवर। इनकी प्रेफरेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूट जो हम पिछले उसमें भी ये डिफाइन कर चुके हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में पहले क्रेडिटर्स देन प्रेफर्ड स्टॉक, और एट द एंड जो इनकम रह जाती है रेजिडुअल इनकम वो आपके कॉमन शेयर होल्डर्स को देते हैं। इन केस ऑफ क्लेम्स ऑन एसेट्स तब भी सब कुछ अमाउंट पे करने के बाद आपके डिविडेंड आपके शेयर होल्डर्स के पास आते हैं। शेयर होल्डर्स में से भी पहले प्रेफर्ड, और जो रिमेनिंग अमाउंट रह जाती है वो आपके कॉमन स्टॉक होल्डर्स के होते हैं। इसमें जो रिटर्न आता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, एंड डिविडेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेट्स सपोज इस साल डिसाइड करते हैं कि हमने डिविडेंड देना है, या एक साल कंपनी स्टार्ट हुई है, कंपनी के फर्स्ट नहीं, दूसरे साल नहीं, तीसरे साल डिविडेंड दिया जाता है। तो जो तीसरे साल डिविडेंड दिया जाएगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का डिसीजन है कि पहले 2 साल नहीं देना, तीसरे साल देना। अब कितना परसेंटेज रिटर्न, जो रिमेनिंग अमाउंट रेजिडुअल इनकम रह जाती है वो इनकम ही आपको कॉमन स्टॉक होल्डर्स को मिल रहे होते हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व होता है। इन केस ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स, आपके योर प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स डू हैव दिस इनकम, लेकिन उनको प्रेफरेंस दी जाती है इनकम इन फॉर्म ऑफ फिक्स डिविडेंड। तो वो जो भी आपका इनकम आ गई एट द एंड बच जाएगी, उसमें से फिक्स डिविडेंड पहले आपके प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को, जो रिमेनिंग होती है वो कॉमन स्टॉक होल्डर्स को देते हैं। ओके, लेट्स लुक एट फ्यू ऑफ मोर थिंग्स। स्टॉक वैल्यूएशन जब भी करते हैं तो वैल्यूएशन की बात करें, वैल्यू की बात करें। मैंने पहले भी पिछले बॉन्ड होल्डर्स वाले चैप्टर में भी यही बात की थी कि आपके जब भी वैल्यू ऑफ एन एसेट की बात करते हैं तो वैल्यू ऑफ एनी एसेट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज, फ्यूचर कैश फ्लोज एक्सपेक्टेड फ्रॉम इट। तो जितने भी मैंने इन्वेस्टमेंट की एक एसेट के अंदर, उसकी मैं देखती हूँ कि फ्यूचर कैश फ्लोज ये है कि फर्स्ट ये है, सेकंड ये, इतने फ्यूचर कैश फ्लोज है। वो जितने भी कैश फ्लोज हैं वो फर्स्ट ईयर इतना आएगा, सेकेंड ईयर इतना आएगा, थर्ड ईयर इतना आएगा। वो जो परसेंटेज रिटर्न आ रहा है उन सब की आज प्रेजेंट वैल्यू, उन सब की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं आज करंट वैल्यू क्या बनती है। दैट इज द वैल्यू ऑफ योर एसेट। तो जब भी हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज की आज प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, वो सर्टन एसेट की वैल्यू होती है। मैंने इन केस ऑफ बॉन्ड इट्स अ बॉन्ड वैल्यू, और इन केस ऑफ स्टॉक इट्स अ स्टॉक वैल्यू। अब 2 किस्म की गेन्स है, ये 2 किस्म की इनकम है जो कि जनरेट होती है स्टॉक वैल्यूएशन में इन्वेस्टमेंट करने के बाद। फर्स्ट वन इज योर कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन में क्या है कि दिस इज रिटर्न अर्न फ्रॉम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स। सो रिटर्न अर्न फ्रॉम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स, लेट्स सपोज कंपनी के शेयर बाय किया किसी ने, लेट्स सपोज मैंने ₹10 का सेल कर दिया मैंने एट ₹12, 2 का डिफरेंस आया, दिस इज माई प्रॉफिट, दिस प्रॉफिट इज माई कैपिटल गेन। लेट्स सपोज अगर मैं 10 का खरीदती और 8 का बेच देती तो वो कैपिटल लॉस हो जाता। सो वो गेन, ये वो जो आपके एक सर्टेन अमाउंट ऑफ अर्निंग आप कर रहे होते हो फ्रॉम दिस स्टॉक वैल्यूएशन। तो 2 काइंड ऑफ डिविडेंड आपको मिलते हैं, 2 काइंड ऑफ रिटर्न्स आपको मिलते हैं। द फर्स्ट इज कैपिटल गेन, वो जब आपने अपना शेयर खरीदा और फिर जाके मार्केट में बेच दिया और ज्यादा वैल्यू पे बेचा तो यू हैव अ कैपिटल गेन। अनदर पार्ट इज योर डिविडेंड गेन। डिविडेंड गेन वो जो डिविडेंड गेन इज द अमाउंट विच इज given by the company,
So it is the return that is given by the company. This is your dividend gain और that is in the form of dividend. So जितने भी dividends दिए जाते हैं they are the return on your investment. तो return आ रहा होता है dividend जो है, तो वो जो company आपको dividend पे करती है, this is your dividend gain. और दूसरा gain आपका buying and selling से भी हो सकता है. तो दो type of gain होते हैं आपकी किसी भी stock valuation की investment के अंदर. Now let's look at preferred stock valuation. हम देख चुके हैं preferred stock क्या होते हैं, अब उनकी valuation देख लेते हैं. In case of preferred stock valuation, we have the formula VP is equals to DP over RP. VP where P, जहाँ भी हम P का word use करेंगे, that is for preferred stock. तो VP की बात करते हैं तो VP is the value or the price of a preferred stock, DP is the dividend on the preferred stock, and RP is the required rate of return on your preferred stock. तो P is for preferred stock, VP price of a preferred stock, then the dividend of a preferred stock, and required return on the preferred stock. So VP is equals to DP over RP. Now let's look at some of the question of the preferred stock valuation. Stock PS has an 8% rupees 100 par value issue outstanding. The appropriate discount rate is 10%. What is the value of the preferred stock? तो आपकी stock PS has an 8% rupees 100 par value. Now please, you must have a paper, a pen and a calculator in order to calculate and in order to get this question right. तो अब अगर आपके पास नहीं है तो आप अभी भी पकड़ लीजिए. You must have a paper and the pen and calculator as well. So हम उसकी values find out करेंगे. अब ये देख लेते हैं कि हमें we are talking about stock preferred stock holder है, तो stock PS has an 8% rupees 100 par value outstanding. That means 100 rupees की उसकी par value और उसके ऊपर percentage जो return इमेजिनरी है, दैट इज 8%. दैट मीन्स कि जो स्टॉक के ऊपर डिविडेंड मिलने वाला है 8% डिविडेंड, अगर आपने 100 का शेयर खरीदा है, उसकी पार वैल्यू 100 है, तो 8% उसके ऊपर डिविडेंड मिलेगा. तो हम इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं? फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू फाइंड आउट डीपी, दैट इज डिविडेंड. हमारे पास अगर इसकी बात करें तो देखिए हमारे पास 8% डिविडेंड रिटर्न मिलेगा 100, अगर 100 का शेयर खरीदा है. तो दिस इज द where we are going to find out the dividend on the preferred stock. Then the appropriate discount rate, जो कि required rate of return भी होता है, this is your RP, return on the preferred stock, and you have to find out the value of a preferred stock. That is question mark. So the formula we are going to use is VP is equals to DP over RP. First thing we are going to find out is DP is equals to 8% into 100. कि वो जो परसेंटेज रिटर्न आपकी 100 के, अगर आपका 100 की पार वैल्यू आपके शेयर की और उसके ऊपर 8% रिटर्न आपको पता है, तो दैट वुड बी 80. ठीक है, आपकी डिविडेंड की वैल्यू हो गई 80. VP इज इक्वल्स टू 80 और RP आपको पता है 10% होता है. तो VP इज इक्वल्स टू, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो द वैल्यू वुड बी 800. So value of a preferred stock with 8% return and 10% required rate of return, the value of a preferred stock is rupees 800. This is the simplest one. Now let's look at preferred stock example. Another example of a preferred stock. Company pays a dividend on preferred stock at rupees 10 per share. That means company ने preferred stock के ऊपर dividend pay किया है और the dividend pay किया है उसकी value कितनी है? rupees 10. So this will be your dividend on preferred stock. If the required rate of return on preferred stock is 10%, that means it is RP. What we have to find value of a preferred stock. That means we have to find out VP. So the formula we have is VP is equals to DP over RP. VP is equals to 10 आपकी डिविडेंड की वैल्यू है, 10% आपके रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न की वैल्यू है. द आंसर वुड बी, अगर हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें, द आंसर वुड बी 100 rupees. That means the value of a preferred stock with 10 rupees per share and 10% required rate of return is rupees 100. तो वैल्यू कितनी है आपकी? 100 rupees आपकी preferred stock की वैल्यू है. Now let's look at few more things कि ये जो हम इससे पहले बात कर रहे थे कैपिटल गेन एंड डिविडेंड गेन की, तो कॉमन स्टॉक वैल्यूएशन को देख लेते हैं. So what cash flows will a shareholder receive when owning shares of common stock? Common stock की एक जनरल स्टॉक वैल्यूएशन और एक कॉमन स्टॉक को अगर कंपनी ने कोई भी ओनर अगर शेयर होल्डर है या इन्वेस्टर है जो वो ओन करता है कॉमन स्टॉक को, तो उसके पास क्या उसकी आनी चाहिए, उसकी अगर वैल्यूएशन देखें तो द फर्स्ट थिंग इज योर फ्यूचर डिविडेंड्स. वो डिविडेंड जो कि कंपनी आपको पे करेगी. कंपनी इज गोइंग टू बाई
going to pay you some dividend or the return on your investment. Return on investment, जो आपने इन्वेस्टमेंट किए शेयर्स में, कंपनी आपको कुछ रिटर्न देगी, रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. तो फ्यूचर रिटर्न्स, एक तो हम ये देखते हैं कि फ्यूचर एक्सपेक्टेड रिटर्न है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, दैट इज फ्यूचर डिविडेंड. और द सेकंड थिंग इज फ्यूचर सेल ऑफ द कॉमन स्टॉक शेयर्स. दैट मीन्स कि आप फ्यूचर में जाके, आप लेट्स सपोज आज शेयर खरीदे, आज अगर हम वही 100 रुपए का खरीदे तो 3 साल बाद आप बेचते हो तो आप उसको 130 रुपए का बेच देते हो. जो 30 रुपीज आएगी, दैट इज द फ्यूचर सेल ऑफ द कॉमन स्टॉक शेयर्स से आपको कुछ गेन आएगा, वो हम उसको कैपिटल गेन कहते हैं. तो फ्यूचर एक ये आपको फ्यूचर डिविडेंड से यू गेट, एंड फ्यूचर सेल ऑफ द कॉमन स्टॉक शेयर से कुछ अमाउंट ऑफ वैल्यू यू हैव. नाउ दिस वाज ऑल अबाउट योर today's lecture. Let's have a brief review of this. First, we studied about the key differences in the bonds and the stock. ये bond and stock दोनों long term आपके instruments हैं, long term financial assets हैं. इनके बीच में difference क्या है कि they have bond holders do not have voting right and voice in management, but shareholders do have. Bond holders are preferred in case of claims on assets or in case of distribution of income, while the shareholders do not preferred over these bond holders or the creditors. The maturity is defined in case of bonds but not defined in case of shares, and the return in case of bonds is fixed payments, but in case of shares it is a dividend. Then we look at the different characteristics of preferred stock and common stock. Preferred stock में आपकी preference दी जाती है claims of assets में, distribution of income में. They do not have any voting rights and they are the hybrid securities जिसके अंदर mixed characteristics है आपके bonds के भी और आपके stocks या shares के भी. और जब हम कॉमन स्टॉक होल्डर्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं दे डू हैव अ वोटिंग राइट, दे डू हैव प्रीएम्प्टिव राइट. उनकी प्रॉक्सीज एंड प्रॉक्सी फाइट के बारे में हमने थोड़ी सी बात की. फिर हमने ये भी देखा कि अगर हम ये बात करें कि डिफरेंट कंपनी के जो कॉमन स्टॉक है, कॉमन स्टॉक के अंदर आपको प्रेफरेंस नहीं दी जाती. देयर इज नो प्रेफरेंस इन केस ऑफ क्लेम्स ऑन एसेट्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. को जो अमाउंट बच जाती है, जो रिमेनिंग अमाउंट बच जाती है, वो आपको कॉमन स्टॉक होल्डर्स को देते हैं. इसीलिए इसको रेजिडुअल ओनरशिप पोजीशन कहा जाता है आपके कॉमन स्टॉक होल्डर्स के लिए. डिविडेंड इन बोथ केस जो है, इन केस ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक आपका फिक्स डिविडेंड होता है, इन केस ऑफ कॉमन स्टॉक आपका फिक्स डिविडेंड नहीं होता. दैट इज ऑल ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे कितनी अमाउंट ऑफ इनकम रहेगी, ये इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर दो शेयर होल्डर्स में. और ये भी डिपेंड करता है कि आप क्या इस साल देना है नहीं देना है, ये सब डिस्क्रिप्शन या डिसीजन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है. देन वी लुक एट द स्टॉक वैल्यूएशन. स्टॉक वैल्यूएशन के अंदर हमारे पास प्रेफर्ड स्टॉक है, कॉमन स्टॉक है, और आपकी दो किस्म के गेन्स हो सकते हैं. द फर्स्ट वन इज योर कैपिटल गेन, जो कि आप बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर से करते हो, और एक डिविडेंड गेन होता है जो कि कंपनी में के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के जो रिटर्न आता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. देन वी लुक एट द प्रेफर्ड स्टॉक वैल्यूएशन, जिसका हमने फॉर्मूला ये किया, वीपी इज इक्वल्स टू डीपी ओवर आरपी. दैट इज वैल्यू फॉर प्रेफर्ड स्टॉक इज इक्वल्स टू डिविडेंड over preferred stock whole over required rate of return on preferred stock, and we looked at few of the example. Then common stock valuation के just introduction हमने करवाया कि common stock valuation में दो किस्म के आपको return मिल सकते हैं. The first one is your future dividends and another one is future sale of those common shares. तो future sale से जो आपको earning होनी है और future dividend से जो earning होनी है, वो आपके common stock की value को determine करता है. In the next lecture we will be continuing with the common stock valuation and 3 different models for finding out the value of a common stock. That was all about your today's lecture. Thank you.